आपको आपकी याददाश्त लेके जाता हूँ मेडिकल कॉलेज के दिनों में। एक कहानी मशहूर हुई थी, आपका डायसेक्शन बॉक्स किसी के ताले खोलने के लिए इस्तेमाल हुआ था। वो क्या That's कहानी है? ज़रा थोड़ा बताएँ। वो कहानी ये है कि अगर आपको याद हो उस डिस्ट्रक्शन बॉक्स में एक उस तरह भी होता था, इफ़ यू रिमेंबर दैट। आई डू। सो इन माय विंग ऑफ द रेजिडेंस वो उस तरह बड़ा मशहूर था। तो हमारी कुलीग हैं, उनकी मंगनी हुई, दोस्त हमारी से क्लास फेलो हैं, तो उनके वालिद ने आम शाम भिजवाए, तो तकसीम हो गए सब में। तो हमारा जो ग्रुप था ना स्कूल में, कॉलेज में लड़कों का, उसको वो आम आए नहीं। जब आम नहीं आए तो हमने गिला किया। तो नाइस ऑफ हर, उसने कहा जी मैं अपने बाबा को कहती हूँ कि वो आम भिजवा दें। हमने कहा जी आप हमें बल्टी नंबर दे दें एंड वील कलेक्ट इट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। So what she did was, instead of giving that belty number to us, she gave belty number to our one of my course mates, Khalid bin Salim, who was engaged to one of our course mates. वो 14 अगस्त आ रही थी, उसने आम रिसीव करके अपने कमरे में बंद कर दिए और छुट्टी चला गया वीकेंड पे। 14 अगस्त को हमने फंक्शन अटेंड किया फ्लैग रेजिंग वाला। जब हम वापस अपने विंग में आए तो वी कुड स्मेल मैंगोज, but we could not identify where they are. So one of our course mates had a very narrow and thin nose and a very good one. So he started sniffing and he came to Khalid bin Salim's room and he said, okay, it is from here. So they borrowed my Ustara to open up screws and go into the room. Okay. And they went into the room and everybody ate the mangoes. And the door was closed. But they forgot the Ustara in the room. Okay. Okay. So when Khalid bin Salim came back, he found the Ustra. He came to me and he said, "That's yours." I think it is very much mine, but it was stolen few years days. How did you get it? So he became defensive. So एक जोक था, बच्चों में शरारतें करते हैं हम बचपन में, तो हाँ हमने खा लिए। Now, I'm going to read another description of yours from a friend of yours. I won't tell you the name. The story goes on like this, that Salim Jahangir is a best storyteller of all times. He builds up the stories, he tells them in such a lot of detail that nobody can match. He is favorite for cricket. He has a lot of knowledge. He played a lot of cricket in the college days. He regards you as a very loyal husband, doted to the welfare of his children. He thinks you are scared of your wife, but he describes you as a best family man. And as far as he can tell, you haven't had any love affairs. वैसे भी अगर हों तो पता नहीं चलने चाहिए, लेकिन उनको नहीं पता आपके बारे में। Then he says that you plan your moves very well, you take the challenges very well, you complete the task that you decide, and then when you are on the job, you don't listen to anybody what they are saying. You will do what you want to do, and nobody can influence you. He also tells me that you have an annual dinner for your class where you get the best of the sheep and you give them absolutely brilliant lunch or dinner, and you do it annually. And they also tell me that you have a fantasy and a reality with farming, and you go every Sunday to your farm where you have your chickens and you have your other pets that you have in there, and you are fond of you breed actually Alsatian dogs. So that's your hobby that he tells me. And then he also told me that you are a very regular in your routine. You sleep on time. Nobody on the earth can disturb your sleep, and you wake up early. And lastly, he said that over a period of last few years, they have seen a transition in you where from Salim Jahangir, the elements of Sufism have started to sink in. But can you guess who this friend can be? मदर साहब हो गए। Yes, this is General Mazhar Ishaq who said these things about you. Tell me about the loyalty of your being as a husband. Why does he call you a very loyal husband? I don't know. I'm actually very loyal. Okay. What is the take home message
as a mental health professional, you would like to give us that what is the best way to bring up a family and bring up a children? Regarding the upbringing of the children and the family life, I personally feel it is the time which you have to give. So you have to give time to your children, quality time, Okay. and you have to be in touch with them, and you have to give them a confidence that they can do anything, and they can share it with you, and no heavens or hell will break down. Okay. So that is the only principle. So that is how you start trusting your children also, and the children trust you. All right. So give us some take-home messages about breeding the dogs and why Alsatians only, and what is the typical personality of a Alsatian dog? I love dogs, but my father never allowed, my mother never allowed me to have a dog. So I never kept a dog while I was in service. Now I have reached a stage and I have a lot of time for myself. So I have started breeding the German Shepherd dogs, and I've got about 6 of them with me. Are there any typical personalities in German Shepherds that you have discovered? German Shepherd is a very intelligent, homely dog. My granddaughters are all very small babies. They play with them. Okay. So there's no risk of dog bite or stuff like that if you train them well. Once I was traveling with you to Karachi, probably as soon as we landed in Karachi, you disappeared in a shop and you came out buying 2 books. Yes. And from that time, I discovered that whatever you talk with a reference and you talk with the history and you talk with some backups. So tell us about your reading hobbies, Actually, reading basically, books, and what kind of books. history has always been my these interest subject. To an extent के मैट्रिक में लोग मैथ्स में ज़्यादा नंबर लेते हैं. सो मेरे मैट्रिक में हिस्ट्री एंड सोशल स्टडीज़ उस ज़माने में कहते थे उसको. तो आई हैड 92 marks out of 100 and maths में was 75. Okay. History has always been my interest. So autobiography is another area which I have been involved in. I've been reading a lot of biographies ever since I was in metric and FSC college. चाहे स्पोर्ट्स की हों, चाहे पॉलिटिशियंस की हों, चाहे मिलिट्री लीडर्स की हों. एंड माई पर्सनल लाइब्रेरी जो मेरी स्टडी है उसमें आई हैव गॉट अबाउट नियरली 1,000 बुक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट ऑटोबायोग्राफीज, डिफरेंट हिस्ट्री की रेलिवेंट है, लिटरेचर है, सूफीज़म के ऊपर किताबें काफ़ी हैं. तो आई रीड अ लॉट. Now we spoke about the Sufism, and I have seen you interacting with some of the other senior mental health professionals, and I could sense that your views of Sufism are very different than the views of some of the other mental health professionals. So please take us through your views about Sufism. जो सूफीज़ है ना इज़ अ वेरी रेयर ब्रीड. आई एम नॉट अ सूफी. सूफी जो है वो इज़ अ पर्सन हु हैज़ अचीव्ड फुल कंट्रोल ऑन हर और हिज नफ्स for that matter. I mean, he is in total control of his emotions, his desires, and everything. And he keeps on giving away, not seeking anything from anybody else, and has got a complete faith in God Almighty. What do you think is a good time for a mental health professional to get indulged into Sufism? Earlier on in his training or after he has finished his training and achieved? You'll be surprised to know that General Schwab was very much interested in Sufism. And when we were students, he would narrate certain very interesting stories regarding various famous Sufis also. और बेसिकली सूफीज़म की बात तो वही आ जाती है नफ्स के ऊपर काबू करना एंड गिविंग अवे टू पीपल. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो मॉजलेस मॉडल है वो बेसिकली सूफीज़म का ही कॉन्सेप्ट है कि व्हेन यू रीच दैट पिनेकल देन यू गेट आउट ऑफ योर सिस्टम. तो वो इट्स एन इंटरेस्टिंग फील्ड, बट आई एम नॉट अ सूफी. आई एम इंटरेस्टेड इन सूफीज़म. आई रीड लॉट ऑफ बुक्स ऑन सूफीज़म एंड आई हैव मेट सर्टन पीपल ऑल्सो. मगर वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है. मगर वो उसमें कोई मतलब है कि आई डोंट प्रीच और आई डोंट प्रोपगेट माई सेल्फ एज ए सूफी. I have a feeling that most of the principles of Sufism and mystic qualities are actually putting down your emotions and making control of them and regulating them and be contented with what you have and being grateful to the Lord. Those are very basic and important principles of mental health, in my opinion. Basically, they are the basic principles of achieving the best standards of humanity, for that matter. So,
would I be wrong in saying that people like yourself who are interested in it should come up and openly tell the juniors about the importance of this? Because we have several examples of mental health professionals excelling in Sufism and mysticisms, but we don't seem to write and train our trainees in this. Do you think there is a need to do that? वी आर ट्रेनिंग पीपल फॉर इन साइकाइट्री। इस तरह सूफीज़म के जो ट्रेनर्स हैं ना वो अवेलेबल नहीं है, एंड इफ समबडी इज देयर ही इज नॉट गोइंग टू एक्नॉलेज इट दैट ही और शी इज अ सूफी फॉर दैट मैटर। My point is that in psychiatry, we teach them about behavioral sciences. स्पिरिचुअलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट मिसइंटरप्रेटेड फील्ड आजकल। स्पिरिचुअलिज्म को आप मल्टीपल एंगल से देख सकते हैं। You can have a different view about it, I can have a different, somebody else can have a different dimension. But ये एक dimension है basically. It starts with the basic self-discipline कि first correct yourself. Learn to control your emotions, your feelings, your desires, and start learning to be a content man. Start opening up your hearts for everybody. Start ignoring the misdeeds of others. दरगुजर करना सीखें. Start giving in. Now, they're all very difficult things for a person to achieve. It is very simple to say, but ये है बड़ा मुश्किल काम, कर नहीं सकता इंसान। प्रिंसिपल्स हम बता सकते हैं अपने ट्रेनिंग्स को, ये ट्रेनिंग ये प्रिंसिपल्स हैं, मगर हाउ वुड दे लर्न इट? इसका जो सिलसिला है ना, इसको हम कहते हैं तरीकियत का रास्ता। यू हैव टू हैव ए मेंटोर, यू हैव टू हैव ए शेख who is a Sufi himself, who takes you along in this field and teaches you how to overcome your nafs, for that matter, desires. The reason I'm saying this, that in our discussion, you narrated General Shoaib being very interested in it. We know a couple of other leaders. Mubashir Saab was Mubashir interested. Saab was very interested in it. You are very interested in it. And I'm throwing it as a question to all my colleagues in mental health, that should there not be a section that we say the principles of Sufism related to mental health that each trainee should know? They're going to make them a better human being and a better psychiatrist. Yeah. So that's basically every discipline should have होना तो चाहिए। Now, one of the purposes of this interview that we have is that we want to pass on what you and I know to the next generation. And as a construct of these interviews, we include a mid-career consultant. So I'm going to invite Suvera to join me, and then we ask you more questions. Suvera? अस्सलाम, कैसी सुवेरा? सर, आपसे बहुत सी बातें पहले होती रही हैं। मैं ख़ास तौर पे आपकी ट्रेनिंग के हवाले से आपसे कुछ बात, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में आपने सुपरवाइज़र का रोल अदा किया फॉर मेनी डेकेड्स। So many of your trainees and colleagues, they see you as one of the leading figures practicing biological psychiatry in Pakistan. Sir, आप कैसे motivated हुए to pursue this biological approach to psychiatric treatment? I was fortunate कि दो बड़े biological psychiatrists, बिगड़े फजल हक मरहूम और बिगड़े असगर चौधरी मरहूम, दोनों बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के biological psychiatrists थे, और दोनों ने मेरी ट्रेनिंग की। 4 साल की मेरी ट्रेनिंग उन साहब के साथ नेचुरली मेरे में वो छाप पड़ गई है। तो that it was not decided by me. I automatically became a biological psychiatrist. I was inclined towards that. आप किसी ऐसे चैलेंजिंग केस के बारे में बताएं जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी बायोलॉजिकल साइकाइट्री के एक्सपर्टीज़ ने आपको हेल्प किया डायग्नोसिस करने में या ट्रीटमेंट प्लान करने में। वैसे तो बहुत से केस हैं सवेरा, मगर एक मुझे पेशेंट याद आती है कि ये 21 साल की बच्ची थी और उसकी शादी हुई और शादी के तीसरे दिन शी बिकेम साइकोटिक। तो इसको लेकर आ गए मेरे पास, और इसके रिलेटिव्स पेरेंट्स लेकर आ गए इस बात से कि जी शादी हुई है, शादी में टेंशन ले ली उसने। अच्छा, व्हेन आई एग्जामिन्ड हर शी वाज एग्जिबिटिंग साइकोटिक फीचर्स, बट एट द सेम टाइम देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ कन्फ्यूजन स्टेट, कॉग्निटिव फंक्शन थोड़े से उसके इम्पेयर्ड थे। मगर चूँकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी तो लिहाजा उसको कुछ ना कोई एंटी साइकोटिक तो देनी थी टू काम हर डाउन। वो एडमिट भी नहीं करा सकते थे बिकॉज दे वर नॉट अफोर्डिंग, और इंटाइटलमेंट उसकी इस तरह से नहीं थी, प्राइवेट पेशेंट थी। तो उसको मैंने टीका लगाया, इंजेक्शन फ्लुमजोल लगा के और थोड़ी सी ओरल मेडिकेशन दे के उनको घर भिजवा दिया।
3 दिन के बाद दे केम बैक विद हाई टेम्परेचर, हाई ग्रेड टेम्परेचर, स्टिफनेस, और उसको फिट्स पड़ रहे थे. So I was a little alarmed and I thought कि probably NMS तो नहीं हो गया उसको. So I got all the tests done. NMS के सारे जो एंजाइम्स थे वो सारे नॉर्मल थे. को समझ नहीं आ रही थी, तो उसको फिर हमने गवर्नमेंट चार्जेस पे करके दाखिल किया बिकॉज द फैमिली कुड नॉट अफोर्ड इट. एंड वी ट्रीटेड हर, मगर किसी ट्रीटमेंट से उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था. एंड शी वाज इवन एंटी एपिलेप्टिक्स और एपीवॉल की ड्रिप लगाने के बावजूद भी हम ठीक हो गए. फिर मैंने इस बार एंजाइम्स रिपीट करवाए एनएमएस के. एंड सेकंड टाइम अराउंड थोड़ा सा ज़रा एंजाइम्स रेज नज़र आए. सो वी डिसाइडेड कि जी आईटीसी में थी बची, वी हैड केप्ट हर इन मेडिकल आईटीसी बिकॉज वी कुड नॉट कीप हर इन द मेडिकल वार्ड, अपना साइकियाट्री वार्ड में. सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर ईसीटी एंड जी, एंड वी डिड गिव हर ECTs एंड देयर वाज नो रिस्पॉन्स ऑन 3 ECTs. When we gave him the 4th ECT, she started slightly improved. And about 6th to 7th ECT, she recovered completely. So probably there was an MS also. मगर थी वो साइकाट्री, मतलब आई एक्यूट साइकोसिस के साथ थी. वैसे तो बड़े चैलेंजेस केस हैं, पर ये चूँकि नई नई शादी की हुई थी, फैमिली वॉज वेरी कंसर्न, देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी. और दाखिल भी हमने खुद उसे करवाया हुआ था बिकॉज आई हैड गिवन हर अ डेपो इंजेक्शन, जो कि नॉर्मली हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में करते हैं. वो जो डेपो इंजेक्शन अगर लग जाए किसी को और उसको एनएमएस हो जाए तो देन बिकम्स a little more difficult and tricky rather than Serenase या haloperidol पे सिंगल डोज तो मेटाप्लाइज हो जाती है. तो आई थिंक शी वाज द मोस्ट डिफिकल्ट केस आई ट्रीटेड. इसके अलावा एक और केस है, वो कश्मीर से आता है, मेनिक पेशेंट है, बट उसका मेनिया इतना सवेयर होता है कि हाई डोजेज ऑफ न्यूरोलेप्टिक्स भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती. सो अनऑर्थोडॉक्सली फिर आपको मैनेज करने के लिए उसको ECT के साथ मल्टीपल एंटीसाइकोटिक्स को मिक्स करके देना पड़ता है, हाई डोजेज कंट्रोल एंड देन इट गेट्स कंट्रोल्ड. सर, साइकाइट्री इज़ अ रैपिडली डेवलपिंग फील्ड. बहुत सारी न्यू रिसर्च, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू थेरेपीज आर कमिंग अप. हाउ डू यू थिंक योर ट्रीटमेंट हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स टू incorporate this new advances? देखें सवेरा, जब हम पहले शुरू में हम साइकाइट्री में आए ना, तो देयर वर वेरी लिमिटेड चॉइस ऑफ मेडिसिन अवेलेबल टू अस. आई स्टिल बिलीव कि अभी तक तो हमें मोस्ट ऑफ दी साइकाइट्रिक इलनेसेस की इटियोलॉजी का नहीं पता. But ultimately, probably we'll end up by having a biological changes in the brain as a etiology of most of the psychiatric disorders, other than certain neurotic illnesses. And stage में come कि जब ये just Star Trek मूवी आप देखते हैं ना, उसमें वो एक स्कैनर लेके फिरता है, डॉक्टर बॉडी पे स्क्रीन करता है, तो ही स्कैन्स एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी. सो अभी तो नहीं है, अभी तो पेट स्कैन इतना बड़ी मशीन आई है कि हो सकता है पॉकेट साइज पेट स्कैन आना शुरू हो जाए. And we may be in a position to scan a patient through and through from toe to head, and the machine will give you the automated diagnostic and management style. So yes, future में who knows what holds to us. सर, ये एंटीसाइकोटिक्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपकी प्रेफरेंस क्या है सर, टिपिकल वर्सेस एटिपिकल, कंसिडरिंग कि अब चॉइस है आपके पास? चॉइसेस तो मैं आई गो फॉर नो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स बिकॉज विद लेसर प्रोफाइल्स. टिपिकल तो मैं नहीं करता, मगर बाज़ों का ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे आपको कन्फाइन करना पड़ जाता है. यू हैव टू स्विच बैक टू हिम. फॉर इंस्टेंस एक दफ़ा मुझे एक कॉल पे इन्होंने बुलाया, देयर वाज ए फुल टर्म फीमेल इन लेबर विद ऑस वाज डायलेटेड 8 सेंटीमीटर्स ऑस डायलेटेड थी, एंड शी वाज नॉट कोऑपरेटिंग विद द स्टाफ टू डिलीवर. शी वाज इन ए स्टेट ऑफ हिस्ट्रियोनिक, जैसे डिसोसिएटिव स्टेट नहीं होती उसमें होते. तो बड़ों से हमने अपने जो उस्ताद हैं उनसे सुना था कि हेलोपेरिडोल कैन बी गिवन इन IV इन हाई डोजेज, बट पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा नहीं था. बट वी हैड टू गो फॉर 30 to 40 milligram हेलोपेरिडोल IV जस्ट टू नॉक हर ऑफ सो दैट द बेबी कैन बी डिलीवर्ड. तो ज़्यादातर प्रेफर मैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स को ही करता हूँ. Would you say there is any fundamental difference between a military psychiatrist and a civilian one? बेटा डिफरेंस तो कोई भी नहीं है एज फार एज साइकाइट्री इज कंसर्न. सिर्फ ये है कि वर्किंग एनवायरनमेंट और जो SOPs हैं वो डिफरेंट हैं थोड़ी सी. मिलिट्री साइकाइट्री में आपने चूँकि MH में ट्रेनिंग की है, FIMH में यू नो इट, डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा जोर है, ठीक है ना. सिविल साइकाइट्री में, सिविलियंस में जो डॉक्यूमेंटेशन होती है डायरेक्ट, मतलब इस तरह से यू आर नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. हमारा ये अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. हमने उसकी इसके दूसरी ये है कि हमने साइकाइट्रिक डिस्पोजल्स करने होते हैं, यानी कि वी हैव टू गिव द ओपिनियन रिगार्डिंग द फिटनेस एंड अनफिटनेस ऑफ ए पेशेंट.
थोड़ा सा हमारा जो वर्किंग जो स्टाइल है एंड रिक्वायरमेंट्स फ़र्क है, अदरवाइज साइकाइट्री तो सिविल साइकाइट्रिस्ट एंड मिलिट्री साइकाइट्रिस्ट आर सेम, देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। सर जैसे कि मैंने मेंशन किया, आई एम ब्लेस्ड टू हैव बीन वन ऑफ द डजन्स ऑफ साइकाइट्रिस्ट्स दैट यू ट्रेन्ड ओवर द इयर्स एज अ सुपरवाइजर। आपका सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस सर मेंटरिंग पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज इन साइकाइट्री क्या रहा? बेटा सारे ही ट्रेनिंग में रहते थे, यू आर वन ऑफ माई बेस्ट ट्रेनिज योर सेल्फ, यू नो इट। बात स्थिति ये है कि जो चीज़ इनकलकेट मैंने की है ना, मेरे जो उस्ताद थे ब्रिगेडियर असगर चौधरी, उन्होंने जो रवैया रखा मेरे साथ, मैंने कोशिश की कि यही रवैया मैं रेप्लिकेट करूं अपने ट्रेनीज़ के साथ। तो आपको पता है कि मैंने कभी भी खिंचाई किसी ट्रेनी की कभी भी नहीं की, एंड इट्स नॉट डिफ़िकल्ट होता है वीक ट्रेनी को उठाना। तुम जैसे ब्रिलियंट ट्रेनीज़ को उठाना तो मसला कोई, तो ऑटो पे चलते हैं आप लोगों को तो इनकरेज करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, एंड यू विल वर्क वंडर्स। बट तो बीच में से कमज़ोर होते हैं ना, जिनको लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम हो या थोड़ा प्रॉब्लम, उनके साथ काम करना जो है ना थोड़ा मुश्किल रहता है। सो नो नेम्स, 2-3 ट्रेनीज़ ऐसे हैं जो दे हैव बीन रिजेक्टेड फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, पर दे डिड वेल। आपके बेटे डॉक्टर ज़रार की बात कर लेते हैं। आई हैव नोन हिम सर फ्रॉम द टाइम दैट ही वाज एन अंडरग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट। आपके अपने बेटे ने साइकाइट्री में कदम रखा, स्टार्ट किया वो जर्नी, तो आपने उनको क्या टिप्स दी? Actually, CC, I never pushed Zarar to come into psychiatry. I thought he is going for a neurology or medicine, general medicine. That was what my impression was. He himself came to me and said, I want to do psychiatry. I said, fine, if you want to do it. तो जनरल टिप्स वही दिए जो तुम्हें दिए थे जो सारे ट्रेनिंग्स को देता हूँ, कि प्रोफेशन को, इसको प्रोफेशन समझना, इसको पैशन ना समझना। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने ट्रेनिंग को सबको बताता हूँ कि एक ओपेक मिरर बनने की कोशिश करो। You should be receptive to the patient, but you should not be affected by the patient. You should be empathizing with the patient completely, but that empathy should not, put you into trouble. Sir, आपके ख्याल में what role does lifelong learning play in the life of a psychiatrist? As adult learners, how can we maximize our academic and professional growth? If you know a bit of everything, you can be an excellent psychiatrist because you can talk to the patient as per his or her interests, and you can understand and empathize with him better. तो वेल रेड होना चाहिए साइकाइट्रिस्ट को, और उसको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, सो दैट ही कैन इंटरेक्ट विद द पेशेंट अकॉर्डिंगली। वरना ये आपको खेलों के बारे में कुछ नहीं पता, खिलाड़ी आ गया उसके साथ क्या बात करेंगे, आपको एक्टर्स के बारे में नहीं पता, आपको यू हैव टू नो अ बिट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सर, अपने रिटायरमेंट के बाद कनीज़ शमीम मेमोरियल हेल्थ सेंटर सेटअप किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसमें बेटा ये है, दिस इज़ माई मदर्स नेम कनीज़ फातिमा, ठीक है ना। तो वो मैं प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, सेमी ट्रस्ट टाइप चीज़ है बेसिकली। whatever is being earned उसमें से 25% is going back into that, तो वो it keeps me busy also, तो और satisfying also। तो एक नियत है कि चलो सवाब कुछ वालदा की तरफ भी चल रहा है, तो अल्लाह बेहतर जानता है। You lost your mother fairly 94 में, and you were a major in the army. And mashallah, your father is alive and he's hale and hearty. And he used to play golf also. He still beats us up, all hands down. We wanted our father to get married, and alhamdulillah he's married happily for 28 and 29 years, and he's happy. Fairly young when my mother died. He was already 60. So he's living very happily with our stepmother. She's just like a mother to us. Our third segment in the program that we do is that we will derive the means of understanding and knowledge about your family, and how you have brought up your family, and how you have assessed this role in your life. And we would like to learn from you the experience and these advice for the general public as to how that could be done. And for that, I am going to invite Aisha. She is going to be asking you questions about that, and let me invite Aisha to come in and talk to you about this. Aisha? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बहन। वेरी नाइस टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच जी। एंजॉय किया मैंने आपकी बातें सुन के, मज़े मज़े की। तो मैं आपसे सलीम कुछ आपके बचपन की और आपकी फैमिली की बातें पूछना चाहती हूँ, बिकॉज दैट्स माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो बताएं, हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइक? Childhood was very happy, basically.
आई वॉज बोर्न इन 1959। तो हम 4 सिबलिंग्स हैं। मेरे से बड़ी 2.5 साल बड़ी बहन है, शी इज़ अ डॉक्टर। उसके बाद मेरा नंबर है, नंबर टेक सेकेंड इन माई फैमिली। छोटी मेरी सिस्टर है, शी इज़ माइक्रोबायोलॉजिस्ट बेसिकली, वो नॉट MBBS बट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। शी इज़ बीन टीचिंग इन बेकन हाउस वगैरह। छोटा भाई मेरा इज़ प्रेजेंटली सर्विंग एज अ वाइस चांसलर ऑफ नम्स, लेफ्टिनेंट जनरल है वसीम आलमगीर। ही वॉज ये, हाँ ही इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट, तो वो इज़ प्रेजेंटली वाइस चांसलर ऑफ नम्स। तो 4 बहन भाई हैं। फादर वॉज इन एयरफोर्स, ही रिटायर्ड एज एयर कमोडोर। He is still alive, mashallah. He's 92 years old. He lives in Lahore. My mother died in 94, and we were brought up very well. We had a lot of influence of our mother on us. मेरी वालदा जो थी वो मेरे वालिद से तकरीबन 6 साल बड़ी थी। फर्स्ट कज़न्स थे, देवर फर्स्ट कज़न्स, एंड शी डिड हर BA in 1946 फ्रॉम दिल्ली। फादर मेरे ईस्ट पंजाब के थे, तो एयरफोर्स में रहे सारी उम्र, बस बेसिस पे घूमते रहे, कुरंगी, पेशावर, कोहाट। फिर उसके बाद मैट्रिक के बाद मैं लाहौर चला गया, FC कॉलेज लाहौर। सो दी चाइल्डहुड वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी सिक्योर। ऐसा इवेंट आपको याद हो जो बहुत आपके जहन में नुमायां हो और लाइफ एक्चुअली शेपिंग हो? इवेंट्स तो बहुत सारे हैं, मगर बेसिकली जो स्ट्रेंथ उनकी थी मेरी मदर की, शी वाज अ वेरी वेरी पेशेंट एंड कंटेंटेड वुमन, एंड शी वाज वेरी वेल रेड। वो प्री पार्टीशन जिन लोगों ने BA किया, नेचुरली उस ज़माने में मुसलमानों के लिए तो बड़ा मुश्किल है, एंड हमारी एजुकेशन पर सारा इम्पैक्ट उनका है बेसिकली। शी टॉट अस, वी नेवर वेंट फॉर ए ट्यूशन एट ऑल इन मैट्रिक और FSC में, कभी हम ट्यूशन पे नहीं गए। शी टॉट अस, एंड शी टॉट अस द होली कुरान ऑल्सो, एंड शी टॉट अस द वैल्यूज़ ऑल्सो। तो सारी चीज़ें उन्होंने हमें, हमारी वालदा ने, का बड़ा अच्छा इंप्रेशन है। एंड शी वॉज ऑलवेज द गिविंग एंड। वी नेवर heard her talking ill of anybody, even from my, normally होता है ना फादर के बारे में क्रेबिंग होती है, तो there was never any cribbing from my mother's side. She was a wonderful woman, और बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका, उनकी मतलब है कि सपोर्ट हमें रही, और हम सारे बहन भाइयों में उनका जो इमेज है वो आया है। एंड वी आर मोर लाइक आवर मदर देन आवर फादर। हमारे फादर हमेशा अक्सर कहते हैं मेरे वालों कोई नहीं गया। So that's such an important fact कि women education कितनी ज़रूरी है, and an educated mother, you know, can be a very good mother. तो आप कह रहे हैं कि वालिद का इतना रोल नहीं था, और हमारे माशरे में समझा भी ये जाता है मदर इज़ द मेन केयरर एंड द पर्सन हु नीड्स टू लुक आफ्टर, एंड फादर इज़ द अर्नर एंड द प्रोवाइडर। बट डू यू थिंक कि इसके अलावा भी हमें कोई वालिद के इनफरादी रोल पे तवज्जो देनी चाहिए? एक्चुअली जो हमारी जनरेशन है ना, जो हमारे पेरेंट्स थे, दे वर फ्रॉम अ लिटिल डिफरेंट जनरेशन। वहाँ पर बच्चे को गोद में उठाना भी मायूब समझा जाता था वालिद के लिए। That was the culture in which we were born. So the whole responsibility of bringing up and taking care of the children was mother's. And father would be earning bread, earning hand, and he would be usually out of the house. तो एक ऑरा क्रिएट किया होता था मदर्स ने कि your father will come, and if you are being naughty and if you are being, then your father will come and sort you out. So एक दो और दबदबे की जो गुंजाइश है उस ज़माने, उस जनरेशन में तो ये थी। नतीजा ये निकलता था कि our generation was very close to the mother, but there was always a gap with your father, emotional भी और वैसे भी। And once you grow up and became an adult, you start becoming frank with your father at that age. I personally can say that when I was a commissioned officer and already a doctor, then I started talking to my father in a frank manner. मगर ये साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपब्रिंगिंग का स्टाइल ठीक नहीं है, बिकॉज पेरेंटिंग जो है वो दोनों का रोल है। हमारी जनरेशन ने इस गैप को तकरीबन फिल किया है कि वी हैव बीन गुड पेरेंट्स। आई कैन एटलीस्ट से दैट आई हैव बीन अ गुड फादर बिकॉज आई गेव लॉट ऑफ टाइम टू माई चिल्ड्रन। मतलब डिस्पाइट द फैक्ट दैट जो जितने बजे भी आए, स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन, नरेटिंग स्टोरीज, प्लेइंग विद, टेकिंग देम आउट, स्पेंडिंग टाइम सो दैट दे हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ फादर एज वेल। बट नॉर्मली मदर्स तो, मदर की तो मजबूरी है, मदर ने तो पालना है बच्चों को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की, मदर के साथ बच्चे ने ऑटोमेटिकली अटैच होना है। So जैसा आपने डिस्क्राइब किया, यू वर वेरी थॉटफुल एंड केयरिंग एंड यू पार्टिसिपेटेड, और अब अगली जनरेशन बहुत कर रही है, लेकिन आई स्टिल फील कि हमारे जो विलेजेस हैं या जहाँ ज़्यादा पेट्रियार्कल यू नो पुराना कल्चर चल रहा है अभी, वहाँ पुराना कल्चर चल रहा है। सो इट्स समथिंग टू थिंक अबाउट कि बोथ पेरेंट्स नर्चर डिफरेंट
एस्पेक्ट्स इन देयर चिल्ड्रन, और दोनों की शमूलियत और कारकर्दगी और करीब होना जो है बहुत ज़रूरी है, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट। होलसम। अब आजकल बहुत सी ख़वातीन काम भी करना चाहती हैं, विच इज़ ऑब्वियसली अ वेरी गुड थिंग। सो हाउ डू यू सी पेरेंटिंग विद रिस्पेक्ट टू अ वर्किंग कपल इफ बोथ ऑफ देम आर वर्किंग? देखिए, बात ये है कि टाइम तो देना पड़ता है आपको। दोनों वर्किंग हैं, फिर भी आपने टाइम निकालना है। यू हैव टू टेक आउट द क्वालिटी टाइम। शुरू में थोड़ा-सा अब तो डे केयर सेंटर का कल्चर आ गया है। सो वर्किंग मदर्स कैन टेक देयर बेबीज़ नॉट गोइंग टू स्कूल टू देयर वर्क प्लेस एंड दे आर लुक्ड आफ्टर इन अ डिफरेंट सिचुएशन। मतलब और उसके बाद कनेक्ट छुट्टी के बाद तुम संभालते ही मदर है। तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो दोनों को लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा टू कंपनसेट फॉर द टाइम विच द चाइल्ड इज़ नेग्लेक्टेड। स्कूल गोइंग के बाद उसके होमवर्क्स भी करने हैं, सारी सारी चीज़ें देखनी है। तो एक्स्ट्रा वर्क डिमांडिंग वर्कलोड आ जाता है, पर करना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर फिर बॉन्डेज ही नहीं होती है आपकी। What do you think कि एक वर्किंग कपल हो और बच्चा इफ एन एडिक्वेट डे केयर में हो, तो डू यू थिंक कि कोई नतीजों में कोई ख़ास फ़र्क होगा? फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ता है। देखिए, देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन ए मदर हु इज़ गिविंग 24 आवर्स टू द चाइल्ड इन अपब्रिंगिंग एंड नॉट वर्किंग इन एन हाउसवाइफ, एंड देयर इज़ अ मदर हु इज़ वर्किंग। The mother who's working has to work extra time to compensate for the time she is losing while working. मुकाबला तो होता है दोनों का, मगर नेचुरली अटैचमेंट जो है बच्चों की उस तरह से नहीं होती, बट दे बिकम लिटिल मोर इंडिपेंडेंट। उसके माइनस पॉइंट दूसरे नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि डिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे। तो अगर प्रोज एंड कॉन्स देखें तो दोनों का तकरीबन बैलेंस हो ही जाता है। तो अगर इसमें इट डजंट मैटर वेदर मदर इज वर्किंग और नॉट, एज लॉन्ग एज शी कैन कंपनसेट एट होम, वो उस टाइम को क्वालिटी टाइम दे पाती है बच्चों को, तो कंपनसेट हो जाता है। हाँ, मगर ये है कि अगर वर्किंग वुमन है कंपनसेट ना करे हाँ, तो फिर तो फिर देयर इज अ मुश्किलात प्रॉब्लम। हाँ, फिर देयर इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि if somebody is not working but wanting to work and becomes unhappy, तो we know that an unhappy mother can't be a good mother. नहीं, आई ऑलवेज एनकरेज वर्किंग मदर को जो है होना चाहिए, दे शुड वर्क, बट एट द सेम टाइम दे शुड कंपनसेट फॉर दैट, दे शुड हैव गिव एक्स्ट्रा टाइम। Exactly. जो टाइम ज़ाया हो गया। अच्छा, तो ये बताइए कि चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर, और हम सब बहुत एकेडमिक्स में इन्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें और अच्छे नंबर लें एंड ऑल दैट। सो बचपन के अर्ली इयर्स में आप पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस करेंगे कि फ्यूचर एकेडमिक एक्सेलेंस हासिल करने के लिए वो बच्चों पे किस तरह काम करें? फोकस ऑन द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, करेक्टर के ऊपर आप फोकस करें। दे शुड लर्न गुड करेक्टरिस्टिक ट्रेट्स पर्सनैलिटी वाइज, एंड दे शुड ग्रो अप टू बी गुड ह्यूमन बींग्स। पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को मालूम होनी चाहिए, उसको इनकरेज भी करें, बट यू शुड नॉट बी प्रेशराइजिंग टू एन एक्सटेंट कि बच्चे को सिर्फ ये लगे कि मेरे पढ़ाई ही के इर्द गिर्द है, ये नहीं करना। तो पढ़ाई की अपनी इंपॉर्टेंस है, उनको सपोर्ट करें, फोकस करें, मगर एक तलवार ना लटकाएं उनके सर के ऊपर। So I think that's a very important message, क्योंकि आजकल grades and straight A's and ये बड़ा A-stars कल्चर का बहुत कल्चर है, which is actually counterproductive. टू सम एक्सटेंट देर ओके, करना चाहिए, मगर उस दैट इज़ नॉट द ओनली मैवर। ये हर इस चीज़ की इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए कि सिर्फ एकेडमिक्स ही ठीक करोगे तो ये चीज़ है। देयर आर अदर एस्पेक्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर। पर्सनैलिटी बच्चे की ग्रो कर रही होती है, आप उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको इतना कॉन्फिडेंस दें और उसको इनकरेज करें, उसको बताएं, वो खुद मेहनत जितना कर सकता है करे। मतलब यू कांट पुश अ चाइल्ड। बाज़ बच्चों में मैं देखती हूँ कि मोटिवेशन बहुत लैक करते हैं वो, सो दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर नॉट काइंड ऑफ एम्बिशियस और इंटेलेक्चुअली क्यूरियस। उसकी वजह ये है ना कि देखें, जो भरा घर है ना, जिसको हर चीज़ मिल रही है बगैर किसी मांगे, वो फायर डेवलप नहीं करता जो बेली में। आपने अगर बच्चे को एम्बिशियस बनाना है तो उसको आप तोहफे भी दें, गिफ्ट भी दें, हर चीज़ दें, मगर उसकी सारी ख्वाहिशात को पूरी मत करें। एट टाइम्स यू मस्ट से नो ऑल्सो, ताकि उसको बैलेंस आउट करें ना। अगर उसको आप पैम्पर्ड कर लेंगे तो मुंह से जो निकालता है उसको आप देते जाएंगे, बाय द टाइम ही रीचेस टीनेजर्स ही इज गोइंग टू बिकम अ डिलिक्वेंट चाइल्ड एडोलेसेंट, ही इज ट्राई टू स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द अदर साइड। फिर आप उसको वापस सैल्वेज नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा वो बैलेंस आउट रखना पड़ता है माँ बाप को ना, मतलब है उसको कि ये हर चीज़ हो रही है, हर चीज़ उसको दे दें। ही शुड नॉट गेट और शी शुड नॉट गेट वट एवर शी और सी इज़ आस्किंग, यू मस्ट से नो।
सो दैट दे शुड लर्न द वैल्यू कि ये चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए ना। जब आप बच्चे को इतना पैम्पर करके फॉर ग्रांटेड देंगे देन ही इज़ गोइंग टू टेक, ही इज़ गोइंग टू डिमांड नो एंडिंग, मतलब ख़त्म ही नहीं होंगी इसकी डिमांड्स। मैं फरीद से सुन रही थी कि यू बीन एन एविड रीडर, तो आप बहुत बुक्स पढ़ते हैं, एंड रीडिंग इज अ डाइंग आर्ट नाउ, सो आई एम Yes. ऑलवेज सो कंसर्न्ड अबाउट इट कि अब वाली जनरेशन हमारी जो है इज नॉट टेकिंग टू बुक्स एट ऑल, सो आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक्चुअली पता है मसला कि टाइम्स हैव चेंज्ड। अब मेरी बच्चों के साथ यही बहस होती है कि पढ़ने के ऊपर में, माई चिल्ड्रन दे रीड बुक्स बट नॉट ऑन मोबाइल एंड इंटरनेट। वो या आप उस पर पैड के ऊपर देख रहे होते हैं या मोबाइल में पढ़ रहे होते हैं किताबें। किताबों को पढ़ना ख़त्म होता जा रहा है, बुक्स की वैल्यू ख़त्म हो गई है। So do you think we should वी work शुड actively इनकरेज, to वी शुड revise इनकरेज that? बुक्स जी। हैं। So किस तरह अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों को अब by हम ये bringing आदत them डालें? books, by bringing them books, encourage them to read the stories, ठीक है नहीं, इनकरेज। मेरे बच्चे सारे पढ़ते हैं किताबें मगर अभी ज़्यादातर मोबाइलों पे आना शुरू हो गए हैं, मगर वी इनकरेज देम टू। मुझे याद है बचपन में ये एनेट ब्रिटन की किताबें आया करती थी, सीक्रेट 7, फेमस 5। वी वर इनकरेज्ड बाय आवर पेरेंट्स बाय प्रोवाइडिंग दीज मैगजीन्स एंड दीज बुक्स टू अस, एंड दैट इज़ वाई वी लर्नड टू रीड। तो अपने बच्चों में भी डालनी चाहिए, हमने डाली कोशिश, टू सम एक्सटेंट वी हैव सक्सीडेड इन दैट ऑल्सो। मगर अब टाइम्स हैव चेंज, उन्होंने बुक लाइब्रेरी अपनी मोबाइल पे रखी हुई है, बुक लाइब्रेरी अपने आईपैड पे रखी है। बात तो गलत उनकी भी नहीं है, दे आर रीडिंग ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। मुझे लगता है ये डिजिटल मीडिया इज अ टू एज्ड सॉर्ड, इसके फायदे भी बहुत हैं, लेकिन बच्चों में आपकी क्या एडवाइस होगी फॉर आवर पेरेंट्स कि किस तरह वो देखिए एक जो बाउंड्री प्रॉब्लम हमें क्रिएट करें? प्रॉब्लम जो आ रहा है ना हमें, सोशल मीडिया की डिस्ट्रीब्यूशन जो लोअर सोशल क्लास में आ गई है ना, अब लो सोशल क्लास एंड मिडिल जो बिल्कुल क्लास 4 जैसे आप कहते हैं, उनके पास भी मोबाइल एंड सर्विसेज आर अवेलेबल। दैट इज़ अ डिप्राइव्ड कम्युनिटी इन अ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। ख्वाहिशात तो उन बच्चों की भी वही हैं, वो भी वो चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। फिर सेंस ऑफ डेप्रिवेशन आती है कल्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, एज दे ग्रो इट्स गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, स्टीलिंग एंड थेफ्ट्स, दूसरी चीज़ें आना शुरू हुई थी, क्योंकि वन वे और द अदर वे दे वांट टू गेट ऑल दोज थिंग्स विच अदर पीपल आर डूइंग। हमारे ज़माने में इतनी डिस्पैरिटी लोअर क्लास और अपर क्लास में नहीं थी। अगर हम स्कूल जाते थे, लंच बॉक्स में जैम टोस्ट लेके जाते थे या आमलेट का अंडा लेके जाते थे, तो वो भी यही लेके जाते थे। पावर्टी आपका लेवल वहाँ जा रहा है कि आप वहाँ पे जा नहीं सकते, तो फ्रस्ट्रेशन एक बिल्टअप हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं स्पेशली लोअर सोशल क्लास के अंदर। तो आपकी इसकी वजह क्या से एडवाइस होगी? हाउ डू वी गो, हाउ कैन पेरेंट्स मैनेज दिस? देखिए बात ये होती है, कुछ लोग बेचारे मोबाइल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो तो नहीं देते, मगर अब मोबाइल स्कूल में अवेलेबल है तो उनकी मजबूरी है, लेके देना पड़ता है। अब ये भी माना नहीं। अच्छा, कंट्रोल एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, पेरेंटल कंट्रोलिंग हमारी नहीं है, हमारे ऐप्स नहीं अवेलेबल हमारे पास कि जिन पे हम बच्चों को ब्लॉक कर सके टू यूज़ गोइंग टू दी साइट्स विच आर अनडिज़ायरेबल, उसको भी नहीं रोक सकते। फिर तरीका यही रह जाता है कि मोबाइल ना लेके दें बच्चे को टिल द चाइल्ड इज़ मैट्रिक। वो आजकल के ज़माने में बड़ा तूफ़ान उठता है घर के अंदर। सो आप सब चाइल्ड सेक्रेटरी में देखती होंगी, बड़े प्रॉब्लम्स लेकर बच्चे आते हैं कि जी बच्चा मोबाइल मांग रहा है, मोबाइल दें या न दें, बाप का मोबाइल यूज़ कर रहा है या माँ का मोबाइल यूज़ कर रहा है। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। और अब उसमें दूसरा ये है कि जो कल्चरल हमारी डिमार्केशन है ना, वो इस इंटरनेट सोशल मीडिया की बस आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जाएगी हमारे। और देखें ना, हमारे इस्लामाबाद का जो क्राउड है, मिसाल के तौर पे लाहौर का है, कुछ कराची का क्राउड, जो रिच क्राउड है, एलीट का क्राउड, उनका लाइफस्टाइल और वेस्टर्न बच्चों का लाइफस्टाइल तकरीबन एक होता जा रहा है। आई मीन पार्टीज एंड स्टार्टिंग थिंग्स, लाइक सारी चीज़ें आ रही हैं, असर तो पड़ रहा है, ये इन्फिल्ट्रेशन तो होगी। अब असल में मसला ये है कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कैसे करेंगे, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ अ चैलेंज विच वी हैव टू, कि अपने ना सिर्फ कल्चर को प्रिजर्व करें बल्कि उसको, हमारे बच्चे जो हैं उसको लेकर आगे ले जाना भी चाहें, उसको अडॉप्ट भी करना चाहें। एक कोट है कि आई थिंक स्टीव जॉब्स ने कहा था कि डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच, एजुकेट देम टू बी हैप्पी, सो दे नो द वैल्यू ऑफ थिंग्स नॉट द प्राइस। और मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि डू यू थिंक एज अ सोसाइटी हम अपने बच्चों में वैल्यू करते हैं या फॉस्टर करते हैं ये सेंस ऑफ बीइंग हैप्पी एंड कंटेंटेड या नहीं? हम नहीं कर रहे ना। और कैसे करनी देखिए चाहिए? बात में हम, हमारी मेन फ्लॉ क्या है, हमारी मेन फ्लॉ ये है कि वी स्टिल, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स आर फोकसिंग एंड इनकरेजिंग द चिल्ड्रन
to become somebody, to earn money and to support the family. ये कल्चर आ रही है। वैल्यूज़ पे हमारा बहुत कम एम्फेसिस है, ठीक है। वी आर नॉट कंसर्न वेदर अ चाइल्ड इज लर्निंग टू लाई और ही स्पीकिंग ट्रूथ, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। स्टीलिंग, किसी को नुकसान पहुंचाना, बिहेवियर और जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स हैं वो ग्रूम कर रहे हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। एज लॉन्ग एज बच्चा जो है अच्छे नंबर ले रहा है, कल को उम्मीद आपने लगाई हुई है कि पैसे अर्न करेगा। Nobody wants to become a doctor to serve the humanity these days. And we may be overlooking happiness. We are overlooking massively. वो ये प्रॉब्लम आ रहा है और आना शुरू हो गया है। So talking of happiness, do you think कि पेरेंटिंग का फोकस जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि हम मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, बच्चा अब्बू की फील्ड में जाए, डॉक्टर हैं तो बच्चा भी डॉक्टर बने, या बेहतर ये है कि उनकी पर्सनालिटी को एज इंडिविजुअल्स हम मोल्ड ना करें बल्कि अनफोल्ड होने दें और उनकी जो खुदादाद सलाहियतें हैं वो खुद अपने लिए रास्ते निकालें और फैसले करने की क़ुव्वत दें हम उन्हें, और प्रोफेशन चूज़ करने की क़ुव्वत दें? हमारे कल्चर में प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वी डिसाइड फॉर आवर चिल्ड्रन। जी, सो दैट्स व्हाट आई थिंक। वेस्ट में अब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। वेस्ट में दे इनकरेज देयर चिल्ड्रन to make a decision regarding their future. They facilitate it. And we should be doing that. We should be doing the same with our children also. I did it with my children. I never pushed them to become a doctor or do whatever it is. But they should be good human beings and they should go for a profession which they want to do. तो आप जब कह रहे हैं कि हमें बच्चों को एम्पावर करना चाहिए जैसे कि वेस्ट में करते हैं, टू मेक देयर ओन डिसीजंस, आई एग्री विद दैट, तो शादी के मामले में भी आपको ख्याल है कि उनको खुद फैसले करने चाहिए? देखें जी, हमारी जनरेशन में तो हम पर फैसले इम्पोज हुए। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट माय फादर रैंग मी अप फ्रॉम पेशावर एंड ही सेड कि गेट योर सूट रेडी, 3 दिन बाद तुम्हारा निकाह है। एंड आई हैड नॉट नोन किधर है, कहाँ है, क्या है। So it was totally arranged 100%. I saw my wife after nikah. Oh my God. ठीक है, ये तो हमारे जनरेशन की बात है ना। हाँ। अभी तो बच्चों की वो स्टेज है ही नहीं। अब तो बच्चे जो हैं they were going to make their own decisions. They should make their own decisions. We should be facilitating them. तो अपकमिंग जो कपल्स हमारे नए, उनके लिए कोई आप 2-4 चीज़ें बताना चाहेंगे कि बिकॉज यू नो मैरिज इज़ क्वाइट एन अप एंड डाउन रोड, तो आपके ख्याल में क्या गोल्डन कोई प्रिंसिपल? मैरिज का प्रिंसिपल से मैं अक्सर यंग कपल्स को ये बताता होता हूँ कि आप दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। नोबडी इज अ बिगर व्हील एंड नोबडी इज अ स्मॉलर व्हील ऑफ द कार्ट। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, इक्वली आप शेयर्स हैं। आपने एक दिन एक दूसरे पे बर्तरी हासिल नहीं है। यू डोंट हैव टू विन ओवर ईच अदर, यू आर पार्टनर्स, you have to accommodate each other, you have to forgive each other for certain other things and accommodate. जब तक आप accommodate नहीं करेंगे succeed नहीं करेंगे, वरना तो फिर वो कोई भी शादी नहीं चलेगी। अगर आपको ये ऑप्शन शुरू से दिया जाए कि अगर ना क्लिक करे तो छोड़ देना, वो थोड़ा सा ज़रा इशू आ जाता है। बट वन शुड encourage the children to go into marriage decision खुद करें, but you should also ensure that once you are getting into a relationship, then you have to sustain it and maintain it. As mental health professionals जब हम young adults को देखते हैं तो बाज़ दफ़ा हम पे प्रेशर पेरेंट्स का होता है कि ये बच्चा नमाज पढ़े। नमाज के लिए नसीहत करनी है तो आप खुद अपने बच्चे को करें। आप पर फ़र्ज़ है, माँ बाप पे तो फ़र्ज़ है ना कि तरकीन करनी है औलाद को। बाकी पढ़ना ना पढ़ना तो औलाद की माँ बाप पे फ़र्ज़ है। साइकियाट्रिस्ट की जॉब तो ये नहीं है कि अभी हम उसे कहें कि जी 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, तबलीग पे जाओ, गश्त करो। दिस इज़ नॉट आवर बिजनेस। तो जब हम पेरेंटिंग फील्ड में एडवाइस दे रहे हो या बता रहे हो तो एक अच्छा इंसान बनाना शुड बी आवर गोल, बेसिकली फोकस रादर देन कोई मोमिनीन बनाने तो नहीं निकले हुए हम। वन हैज़ टू बी अकोमोडेटिव टू अदर रिलीजन्स आल्सो ना। आप बच्चे को आप फनेटिक बना दें कि जी तुम ठीक हो बाकी सब गलत है, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। वो खुद गेन कर लेगा नॉलेज, और उसको बेसिक नॉलेज दें उसको। एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारे मुआशरे की मौजूदा इखलाकी पस्ती है, यू नो व्हाट रियली लाइज बिहाइंड दैट, और कायद आज़म वाला पाकिस्तान जो है वो कहाँ खो गया? यू विल बी सरप्राइज्ड बाय माय आंसर। बेसिकली आई पर्सनली फील कि डिस्पाइट ऑफ द कल्चरल डिके, सोसाइटी में जो हमारी डिके आया है, डिस्पाइट द फैक्ट इतना आने के बाद
द फ्यूचर इज़ ब्राइट फॉर टू मेन रीजंस, बिकॉज जो यूथ हमारी है ना, हमारे जो बच्चे हैं, ये मुनाफिक नहीं है। हमारी जनरेशन थोड़ी मुनाफिक थी। आई मीन वी वुड नॉट लाइक समथिंग बट वी विल एग्री विद आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स के जी अच्छा ठीक है जी चुप। अभी हमारे बच्चे जो हैं दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ कॉलिंग स्पेड स्पेड, दे आर ट्रूथफुल, वो मुनाफिक नहीं है, जो हैं वो हैं। बचपन से हम ये कहानियाँ दास्तानें सुन के जवान हुए हैं, तो हमें तो पता है कि कायद आज़म की क्या वैल्यू थी। जो नई जनरेशन है, अनफॉर्चुनेटली पिछली 2 डिकेड में हमारे करिकुलम्स कुछ ऐसे रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को, इस नई जनरेशन को हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से दूर कर दिया है। हमारे बच्चों को नहीं पता कि ये तो पता है कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया, मुस्लिम लीग क्या थी, दे डोंट नो द डिटेल्स एक्चुअली वाई ट्रू नेशन थ्योरी क्या है, ये चीज़ें बच्चों को नहीं पता। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ग्रूम एंड एजुकेट आवर ओन चिल्ड्रन, अपनी फैमिली के लेवल के ऊपर बताएं कि पाकिस्तान का वजूद कैसे हुआ, क्यों हुआ, कायद आज़म का क्या रोल था, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे रोज़, और हम डीरेल कहाँ हो गए। ये चीज़ें बच्चों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। So I think that's all I wanted to know. Thank you so much. बहुत मेहरबानी सलीम फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद अस। हमने सब ने बहुत सवालात पूछे और आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और हमने आपसे बहुत आज सीखा, और हमें उम्मीद है कि आपके ये तजर्बे हमारी बदौलत जिन लोगों को पहुंचेंगे उनको इसका बहुत फ़ायदा होगा। फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई थैंक you very much, and I think our viewers would love to hear from the horse's mouth the way you have been to the present position. God bless you and thank you very much. We all pray for your health, happiness, and a prosperous, bright future. Thank you very much for joining us. Thank you very much, Fareed. It was a pleasure meeting you. Thank you very much, Sawiraj and Dr. Aisha. It was nice interacting with you. Thank you. अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज। Please take care of yourself and signing off now. Thank you. Thank you.